current density. Okay, current density means it is the ratio of the electric current flowing through a conductor per unit area of the conductor such that area is normal to the direction of the electric current. Okay, it is represented by J. For let J is equal to electric current and area of the conductor. This ratio is known as the current density. J is equal to I over A. Okay, but this result is applicable when the area of the conductor is normal to the direction of the electric current. For this, let we have to, this is the direction of the electric current through the conductor. This is the direction of the electric current through the conductor. Okay, and this area is normal to the direction of the electric current. Okay, this is the direction of the current, and suppose we have to consider the area vector. Area vector is also in this direction. This is the area vector. Okay, and this is the electric current. Then we write current density J is equal to I over A. Okay, but in general, okay, if we tilt the area, हमारे पास अगर एरिया की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, एरिया नॉर्मली नहीं आता है हमारे पास करंट के लिए, लाइक दैट, ये हमारे पास करंट के लिए डायरेक्शन हो जाती है. अब यहाँ पर जो एरिया वेक्टर बनेगा वो कुछ हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा. दिस इज द एरिया वेक्टर. ओके, इन दिस फिगर द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एरिया वेक्टर इज नॉट सेम. Okay, the area vector make an angle theta with the direction of the electric current. So in this figure, how we write the current density? Okay, for this we have to resolve the area vector into the rectangular components. Okay, for this, one is this and one is this. This component in the direction of electric current, it will become A cos theta. Okay, and the component which is perpendicular to the horizontal component, it is known as A sin theta component. Okay, from these two components, the direction of A cos theta is same as the direction of the electric current. Means A cos theta component of the area vector is normal to the area is in the direction of the electric current. Okay, so here we write J is equal to I over A cos theta. ये हमारे पास जर्नल रिजल्ट आ जाता है. यहाँ पर अगर कोई भी एंगल गिवन हो तो हम लोग यहाँ पर एंगल की वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग करंट डेंसिटी J को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, I इज इक्वल टू J A कोस थीटा यहाँ पर बन जाता है, और सिंप्लीफाई में हम लोग लिख सकते हैं J डॉट E. ओके, यहाँ पर आ जाता है जो हमारे पास करंट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी J, the direction of current density J is same as the direction of the motion of positive charge in the conductor. Next, relation between the current density and drift velocity. Okay, for this we know that I is equal to NEAVD. Okay, this is the result for the electric current in terms of the drift velocity. Okay, now A area from the right hand side is move on the left hand side, so we get I over A is equal to NEVD. Okay, but this factor is equal to current density J is equal to NEVD. ये यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आ जाती है करंट डेंसिटी J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बेटा. नेक्स्ट इज द कंडक्टेंस. ओके, कंडक्टेंस इज अ quantity which tell us
how easy the charge carriers are flow through the conductors. Okay, and it is reciprocal of the resistance. It is equal to the reciprocal of the resistance. Okay, and conductance is represented by capital G, and it is equal to the reciprocal of the resistance. Okay, G is equal to 1 by R हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं. दिस इज द मैथमेटिकल रिजल्ट. ओके, बट R is also equal to ml n e square a tau. R के लिए हमारे पास एक रिजल्ट ये होता है बेटा. ठीक है, in term of the number density relaxation time resistance is equal to this factor. Okay, so कंडक्टेंस इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर लेंगे हम लोग, इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है बेटा एन ई स्क्वेयर ए टाउ ओवर एम एल. दिस इज द कंडक्टेंस इन टर्म ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. यूनिट की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर यूनिट्स आ जाता है ऐसा. यूनिट इज 1 बाई आर है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ओम इनवर्स. हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ओम इनवर्स हो जाएगा, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं मो और सीमेंस हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी. ओके, कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो. कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा. Conductivity is represented by the sigma, and it is defined as the reciprocal of the resistivity. It is reciprocal of the resistivity, means 1 by rho. Okay, and we know that rho is also equal to m n e square tau. This is the resistivity of the conductor in term of number density and relaxation time. Okay, so conductivity in term of relaxation time and number density of the electron will become this. This is the conductivity of the conductivity of the conductor in term of the number density and relaxation time, and its unit is ohm inverse meter inverse. Next, relation between the current density J, conductivity sigma and electric field. Okay, as we know that I is equal to n e a v d. करंट के लिए हमारे पास ये रिलेशन होता है बेटा विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन, relaxation time over mass of the electron. Okay, put this value in this equation, then we get I is equal to n e a into e relaxation time tau and m. So I will become n e square e a tau over m. यहाँ पर ये रिजल्ट हमारे पास बन जाता है बेटा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जो राइट हैंड साइड में हमारे पास ए आ रहा है एरिया, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले जाते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा एन ई स्क्वेयर टाउ ओवर एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है, तो ये इस तरीके से वी नो दैट आई ओवर ए इज इक्वल टू जे, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ ओवर एम. ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया है बेटा, और ये बन जाता है ई. ओके, यहाँ तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया. अब नेक्स्ट वी नो दैट रो इज इक्वल टू, रो मीन्स रेजिस्टिविटी. ओके, इज इक्वल टू एम ओवर एन ई स्क्वेयर ओवर रिलैक्सेशन टाइम. ये वैल्यू होती है बेटा.
ठीक है। बट हमारे पास ये उल्टा आया हुआ, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो रखा है। अगर हम लोग यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लेते हैं बेटा दोनों साइड से, तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा n² टाउ ओवर m। अब जो ये वाला रिजल्ट है हमारे पास, ये इस वाले रिजल्ट के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैच हो रही है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जो ये वाला फैक्टर है ये हमारे पास 1/ρ हो जाता है। ठीक है, बट 1/ρ इज अगेन इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो रिजल्ट मिल जाता है J इज इक्वल टू E/ρ। ओके, बट 1/ρ इज इक्वल टू सिग्मा, ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा हमारे पास J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये रिजल्ट यहाँ पर बन जाता है बेटा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी J, conductivity and electrical field. Next, relation between resistivity and mobility. Okay, फिर again we know that I is equal to NEAVD, ये वाला रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है बेटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से एरिया जो आया हुआ है इसको दूसरे वाली साइड में लेकर चले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा I/A इज इक्वल टू NEVD, ये वाला रिजल्ट हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये जो रिजल्ट है हमारे पास ये बन जाएगा करंट डेंसिटी J NEVD। ओके, बट मोबिलिटी इज इक्वल टू VD/E। From this we get VD, VD is equal to mu E। ये रिलेशन हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो J के लिए रिजल्ट आ जाएगा, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा N स्मॉल e म्यू एंड कैपिटल E, ये वाला रिजल्ट बन जाता है बेटा हमारे पास। ओके, बट J इज इक्वल टू सिग्मा E। J के लिए जो रिजल्ट आता है हमारे पास, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया बेटा J इज इक्वल टू सिग्मा E। ओके, बट सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। सिग्मा के लिए ये वाला रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम लोग सिग्मा की यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो J के लिए क्या रिजल्ट बन जाएगा, J इज इक्वल टू E/ρ। ओके, J के लिए हमारे पास रिजल्ट, एक रिजल्ट ये आया वो J इज इक्वल टू NE म्यू E, और एक रिजल्ट ये आया वो J इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर रेजिस्टिविटी। ओके, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे बेटा। कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट गिव द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड द मोबिलिटी। ओके, यहाँ पर हम लोग अब कंपेयर करते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ साइड में। ठीक है, दोनों साइड्स को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है E/ρ इज इक्वल टू NE म्यू एंड E। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो वी गेट 1/ρ इज इक्वल टू NE म्यू, वेयर म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ρ इज इक्वल टू 1/NE म्यू। This is the required relationship between the resistivity and the mobility. Effect of temperature on the resistance. When we change the resistance of the sample, then how the resistance of the sample will depend. Okay, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। As we know that resistance of the material, resistance of the sample is depend on these factors. This is the mass of the electron, this is the length of the conductor or sample, this is the number density of the free charge carrier in the sample, and this is the charge on an electron, this is the area of the sample, and this is the relaxation time of the charge carriers. Okay, for a given sample M, L, A, E, all these terms will be constant. Okay, so the resistance of the sample will depend on the number density of the free electrons, okay, and the relaxation time of the free electrons. Okay, where n number density means it is the number of the free charge carriers per unit volume of the sample.
ओके, एक यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर का जो नंबर होता है उसको हम लोग नंबर डेंसिटी बोल देते हैं। जितने ज़्यादा नंबर डेंसिटी होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा, नंबर डेंसिटी कम होगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। ये इन्वर्सली रिलेशन यहाँ पर आया हुआ है बेटा, ठीक है। फॉर इंसुलेटर की अगर हम लोग बात करते हैं, इंसुलेटर की बात करेंगे तो नंबर डेंसिटी क्या होती है, जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं इंसुलेटर के लिए वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारे पास आ जाता है रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम है क्या, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। The time between the two successive collision is known as the relaxation time, and resistance is and relaxation time, they are inversely related to each other. Okay, first we discuss about the conductor. For a conductor we increase the temperature वी इंक्रीज द टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास राइज हो रहा है बेटा, ठीक है। एक कंडक्टर हम लोगों ने लिया हुआ है, कंडक्टर का हम लोग टेम्परेचर यहाँ पर राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब जब व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फ्री चार्ज कैरियर डज नॉट चेंज। When we increase the temperature of a conductor, then the number density of the free electrons or free charge carriers does not change appreciably. ओके, जो नंबर डेंसिटी आ रहा है हमारे पास, नंबर डेंसिटी में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल माइनर चेंज आएगा, नेग्लिजिबल हम लोग उसको मानेंगे, ठीक है। बट when we increase the temperature then the thermal energy will increase. Due to this, atoms and ions present in the sample will start to vibrate with the more amplitude. Okay? जो हमारे पास एटम्स और आयंस होते हैं वो एक लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ड्यू टू दिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन या और सिंपली द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स with the atoms and ions while drifting toward the positive end of the conductor will increase. In simply, the number of the collision will become fast. The collision of the electrons with the atoms and ions will become fast. Okay, due to this the time between the two successive collision will reduce. Okay, अब यहाँ पर हमारे पास जो टाइम आ रहा है रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन जो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अब फास्ट मूव कर रहे हैं। फास्ट मूव करेंगे तो जो कोलिजन का जो टाइम, जो कोलिजन है हमारे पास वो जल्दी जल्दी होंगे, और जिसकी वजह से हमारे पास जो टाइम है टू सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लग रहा है हमारे पास, दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। टाइम रिड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस के साथ टाइम का क्या रिलेशन आया हुआ है, इन्वर्सली रिलेशन आया हुआ है, ठीक है। टाइम यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर देन इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर। अब अगर हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए बात करते हैं बेटा, ये हमारे पास फैक्टर आ गया, रेजिस्टेंस विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ओके, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये हमारा जो सैंपल है बेटा, ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का हम लोग जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी द नो चेंज इन द रिलैक्सेशन, there will be the no effect on the relaxation time does not change. Okay, but number of the charge carriers will increase. Okay, due to this, when we increase the temperature then the electrons will break the covalent bond and they produce the large number of the free electrons and the holes. Okay, when we increase the temperature then the number density of the free electrons will increase. नंबर डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर का डिक्रीज हो जाता है बेटा।
ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर देन देयर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ओके, इट इज अपोजिट टू द कंडक्टर का यहाँ पर उल्टा हो रहा है बेटा। ओके, ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखनी है। ओके।